Hello student, welcome back to your own channel Simplified Chemistry. Welcome. Now in this particular session we will discuss the paper of Goodset 2018. Okay student, quickly join the session, then we will start. Okay, join the session fast. Okay student, so let us start our Goodset 2018 paper solution. Okay, here is the first question. How many grams of Cl2 gas will be obtained by the complete reaction of 31.6 gram of potassium permanganate with hydrochloric acid? Molar mass of KMnO4 is given 316 gram per mole. So now student, here you must have to know the reaction. आपको रिएक्शन पता होना चाहिए, तो रिएक्शन क्या है. ओके, चलिए इधर मैं रिएक्शन लिख देता हूँ. KMnO4 प्लस क्या है, HCl. तो यू शुड नो दिस रिएक्शन. KMnO4 प्लस HCl, यू विल गेट व्हाट, KCl प्लस MnCl2 plus Cl2 and plus H2O. Now balance it. Clear Cl. Okay, now that you can do the balancing of this properly. Now I am writing the balanced equation. Clear? Okay. So now here simply you can say that here 2 moles of KMnO4 is there. So you can say that 2 into 316 gram per mole when reacts with the 16 moles of HCl, at that time it will give us, now here तो 35.5 होता है Cl का, तो 2 मिला के टोटल 10 है. तो सिंपल 10 into 35.5 gram of Cl2 we are obtaining. Clear? By using 2 into 316 gram of KMnO4. I can simply say that 2 into 316 gram of KMnO4 will produce 10 into 35.5 gram Cl2. Okay, so now here it is written that 31.6 gram of potassium permanganate. So if 31.6 gram of potassium permanganate is there, it will form how much gram? So that is simple one, 31.6 into 10 into 35.5 upon 2 into 316. Now if you will solve this student, you will get the answer, that is 17.75. Clear? 17.75. So answer is B. Clear? Okay, it is that simple student. Okay, simple stoichiometry, but you should know the reaction. And this reaction is, you know that, of chapter number 8, D block element, D and F block element, and in that KMnO4. This reaction is of that chapter. Clear? So you should know the reaction student. Then that is simple one, you can easily do it. Okay, let's move towards the next question. Now next question, now for you, you have 10 seconds. Please reply fast. In the chat box you can reply it. What is the structure of XeOF4? Square pyramidal, trigonal bipyramidal, pyramidal, या square bipyramidal. So it is what, square pyramidal, because you know that the structure of XeOF4 is like this. Clear? And here is the lone pair. Here is the lone pair. So this is the structure. Okay, so you can simply say that the shape will be square pyramidal. The structure will be square pyramidal. Simple one. Okay, let's move towards the third one. Which one is not an allylic halide? Which one is not an allylic halide? 4 options are given to you, student. Okay, 4 options are given to you. You just have to draw the structure. First of all, IUPAC name is given. Prepare the structure. Hex 1 in. So 3 chloro, cyclohex 1 in. Cyclohex. Okay, 1 in. Chalo, 1, 2, 3. 3 chloro. Okay, so here
आप देख सकते हो इधर डबल बॉन्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ये जो हैलोजन है वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है, वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है, तो ये होगा अपना एलाइलिक हैलाइड। तो ये होगा एलाइलिक हैलाइड। अभी बात करते हैं 1-क्लोरोब्यूटवानिन। क्लियर? ओके, 1-क्लोरोब्यूटवानिन, 1 2 3 4, तो 1 पे ही क्लोरोब्यूटवानिन। ओके, तो ये डायरेक्टली आप देख सकते हो Cl यहाँ पे अटैच है, तो Cl डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज के साथ अटैच है, तो उसे बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। दिस हैलाइड इज कंसिडर्ड एज व्हाट स्टूडेंट? विनाइलिक हैलाइड। सो आवर आंसर विल बी दिस वन, दिस इज नॉट एन एलाइलिक हैलाइड, सिंपल वन। चलो लेट्स सी दिस ऑल्सो, 1-क्लोरोब्यूटवाइन। चलो 1-क्लोरोब्यूटवाइन, दिस वन। ओके, 1 2 3 4, 1-क्लोरोब्यूटवाइन, तो ये हो गया एलाइलिक है। 3-क्लोरोप्रोपवानिन, प्रोप 1 एंड 3-क्लोरो। क्लियर? तो ये भी क्या हो गया? एलाइलिक हो गया। इट मीन्स खाली आंसर आएगा बी आपका। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज द फोर्थ वन। विच इज द मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ 2,2,2 ट्राइक्लोरोइथेनॉल विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2,2,2 ट्राइक्लोरोइथेनॉल। तो इथेनॉल तो C&CHO। ठीक है, 2,2,2, तो ये 1 या 2 के ऊपर ट्राइक्लोरो, तो Cl इधर आएगा, Cl इधर आएगा, Cl इधर आएगा, और 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल, एंड उसका रिएक्शन करना है हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH ट्वाइस। तो आपको पता है क्या मिलेगा? क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन है ये। ठीक है, क्या होगा? ये क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन है, CHCl3 एंड प्लस कैल्शियम फॉर्मेट। आपको पता है क्या मिलेगा? कैल्शियम फॉर्मेट मिलेगा। तो ये भी इसका प्रिपरेशन है CHCl3 का। ठीक है, CCl3CHO में से। क्लियर? हमारा आंसर क्या आएगा? तो इसमें हमारा आंसर आएगा सी, दैट इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? तो हमें पता है ऑप्टिकली एक्टिव किसे कहते हैं। तो पहले आपको ये कंसेप्ट समझना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव किसे कहते हैं? जिसमें कायरल कार्बन हो, एंड जिसमें कायरल कार्बन नहीं है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए तो सारे कंपाउंड देखते, स्ट्रक्चर बनाते। तो 3-क्लोरो, ओके, 3-क्लोरोब्यूटवानिन, 3-क्लोरोब्यूटवानिन है। तो चलिए उसका स्ट्रक्चर बनाते, 1 2 3 4, ब्यूट है 1 1 2 एंड 3, 3-क्लोरोब्यूटवानिन। आप देख सकते हो इसके पास सेम 3 हाइड्रोजन, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। इधर देखने जाओ तो ये H, यस, तो ये कार्बन कायरल कार्बन रहेगा। ये 2 अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, चारों अलग है, तो ये कायरल कार्बन होगा। इट मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव है। 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन, तो ये तो नहीं है। इसकी बात करें तो यस, इस साइड CH3, इस साइड पूरा अलग, ऊपर H, नीचे Cl, यस, तो ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। ठीक है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो इधर तो COOH एंड 2-हाइड्रोक्सी, यस, तो ये कार्बन भी हुआ, इधर आएगा CH3 COOH, इसके ऊपर H, यस, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो बच्चा यही ऑप्शन, फिर इसको देख लेते। 2,2-डाइक्लोरोपेंटेन, 1 2 3 4 5, तो 2,2-डाइक्लोरोपेंटेन, तो चलो इसमें तो HH नहीं है, इधर भी Cl, इधर भी Cl, तो ये भी नहीं आ सकता। इधर H, इधर H, ये भी नहीं हो सकता। H नहीं हो सकता, तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। ठीक है, ओके, बहुत ही आसान है बच्चों। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज द सिक्स्थ वन। विच ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हैज द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट? लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जो प्रोडक्ट मिलेगी उनमें से। तो अभी CH3 CH2 COOH दिया गया है आपको, आप उसका क्या कर रहे हो? LiLH4H2 रिडक्शन कर रहे हो, तो आपको पता है COOH का रिडक्शन होके क्या मिलता है? CH2OH मिलता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, बेसिक रिएक्शन, CH3 CH2 CH2OH, तो ये मिला COOH की जगह पे।
ओके अभी कीटोन का भी NaBH4 तो रिडक्शन ही है, तो आपको पता है वो सेकेंडरी अल्कोहल देता है CHOH एंड CH3। CH3CH2 CHO NaBH4 CHO का रिडक्शन होते भी क्या मिलता है, CH2OH मिलता है, CHO की जगह पे CH2OH। अभी ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 BH3 ट्वाइस H2O2 OH माइनस, इसे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में OH माइनस कहाँ अटैच होता था, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले। क्लियर, इट मीन्स जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इसमें जिसके पास ज़्यादा नंबर के हाइड्रोजन है वहाँ पे OH अटैच होगा यहाँ पे। क्लियर, तो आप देख सकते हो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी, तो तीनों प्रोडक्ट तो सेम ही बचा। इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं। यस और नो? क्लियर, तो आपको पता है प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सेकेंडरी से, तो सेकेंडरी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो आंसर हमारा आएगा बी। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल है बच्चों। ओके चलिए तो जाते हैं अभी नेक्स्ट। विच इज़ द फाइनल प्रोडक्ट that is obtained by the reaction of Grignard reagent with ethyl magnesium bromide with propanol। तो प्रोपेनॉन क्या होता है, CH3COCH3। उसका आपको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करना है किसके साथ, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो CH3CH2 MgBr के साथ करना है। तो क्या करोगे आप, मैंने अभी बताया था ये एल्डिहाइड कीटोन में जब भी ग्रिग्नार्ड करेंगे आजू बाजू वाले कहाँ चले जाएंगे, ऊपर नीचे, बताया था कि नहीं आपको, आजू बाजू वाले ऊपर नीचे। तो CH3CH3 चला गया, अब ये बॉन्ड इधर O और बाकी वाला बॉन्ड इधर चला गया। O के साथ क्या अटैच हो गया, MgBr, तो इधर MgBr अटैच हो गया एंड इधर आपको क्या मिलेगा, CH3CH2। क्लियर, तो ये हो गया हमारा। अभी इसका H2O के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा, MgOHBr निकल जाएगा। आप सिंपल कह सकते हो MgOHBr निकल गया। ओके डन, तो इधर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, CH3CH2C, इधर भी CH3CH3 एंड OH। तो इसका IUPAC नेम क्या, तो भाई बच्चों अभी चलो लॉन्ग चेन की बात करते हैं। लॉन्ग चेन कौन सा बनेगा, ये हमारा लॉन्ग चेन बना। तो 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर, तो आंसर आएगा बी। तो हमारा आंसर रहेगा बी, दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर स्टूडेंट? ओके चलिए नेक्स्ट वन। विच इज द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का सबसे सही फॉर्मूला कौन सा है, तो आप बता सकते हो सी। क्लियर, एस्पिरिन उसे क्या बोलते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, पता है ना आपको, इसका IUPAC नेम भी हमने देखा था। क्लियर, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं इसे। तो ये हो गया अपना एस्पिरिन का फॉर्मूला। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट जाते हैं। द यूनिट्स फॉर द रेट कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम फॉर द रिएक्शन, what will be the order of the reaction। ये ऐसा बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट सेम है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा। तो आप सिंपल ऐसे लिखते थे, रेट इज इक्वल टू क्या लिखते थे, A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू N, जिसमें N क्या था, N हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, N हमारा क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी ये बोल रहे हैं कि रेट एंड K सेम है, तो बेसिकली ये क्या आने वाला है, ये 1 आने वाला है, 1। तो ये 1 कब आएगा, जब एनीथिंग इज पावर 0 इट विल बी 1, सो N इज इक्वल टू 0। सो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा बच्चों, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें बनेगा 0 ऑर्डर रिएक्शन, तभी ये पॉसिबल है, इसलिए आंसर आएगा 0। तो ये आएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया? एनीथिंग एज पावर 0 विल बी 1, क्योंकि इसमें बताया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट सेम है, तो इट मीन्स ये पूरा वैल्यू 1 आएगा, इसीलिए n की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन कि 27 डिग्री सेल्सियस पे टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 सेकेंड,
व्हाट विल बी इट्स रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताया बच्चों, तो K इज इक्वल टू क्या आएगा 2.303/T इंटू लॉग R0/R, आपको पता है। तो 2.303 टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड इंटू लॉग R0 तो 100 ले लेता हूँ। अभी क्या बोला है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन। 75% कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना बच्चों, तो बचेगा क्या 25 बचेगा। तो 25 4 से अभी आपको log 4.6021 पता है आपको, क्लियर। अभी इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है 0.6021 एंड ये आप सॉल्व करोगे क्लियर, तो आपको आंसर मिलेगा 0.0693, 0.0693 ये आंसर मिलेगा। अभी ऐसे तो दो ऑप्शन है 0.0693, 0.0693, तो इसमें क्या आएगा, तो बच्चों इसमें आपको यूनिट भी बहुत मैटर करेगा। आपको पता है रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 - n इंटू टाइम इनवर्स। अभी इधर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 - 1 दैट इज 0। ओके, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या आएगा टाइम इनवर्स। तो हमारा सेकेंड इनवर्स जो लिखा है ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ये होया हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट। तो आपको इधर सेकेंड इनवर्स लिखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें हैं बट ऐसी बातों में गलतियां हो जाती है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। बहुत ही आसान है, होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, चलिए जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट दिया है डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही बात है। इट इंक्रीजेस द प्रपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट इन लेस टाइम, क्लियर, ये भी सही है। ओके, अभी इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी हमने पढ़ा। इट इंक्रीजेस द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, नहीं बच्चों फ्री एनर्जी इंक्रीज नहीं कर सकता, क्लियर, ये नहीं कर सकता, ये गलत पॉइंट है। बाकी के सारे पॉइंट क्या है सही, थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है। कैटालिस्ट हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी देखा एज वेल एज हमने DAF ब्लॉक एलिमेंट में भी देखा। ये पूरा जो दिया है आपको केमिकल काइनेटिक्स वाला दिया है, ठीक है। ओके, चलिए जाते हैं नेक्स्ट पे। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ कोलोइडल सॉल FeOH thrice, the colloidal particles move towards anode or and cathode both, move towards cathode, move towards anode, do not move। तो क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा। इसमें आप कह सकते हैं कि ये मूव टूवर्ड्स कैथोड होंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों FeOH थ्राइस जो होता है वो पॉजिटिव सॉल्व होता है। कैसा सॉल्व है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पता है ना, ऐसा पूरा अरेंजमेंट था इधर, क्लियर। एक बाजू एनोड है, एक बाजू कैथोड है, तो ये कौन से इलेक्ट्रोड की टूवर्ड्स जाएंगे, FeOH थ्राइस होंगे तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज होगा इधर, तो कैथोड के पास जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स दे विल मूव टूवर्ड्स कैथोड बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व होता है। ओके, चलिए जाते हैं नेक्स्ट पे। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड in presence of platinum catalyst, which metal impurity acts as a catalytic poison? P block element, clear, theoretical question। तो आपको पता है क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा CR, कैटालिटिक पॉइजन, क्लियर, आपको पता है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, थियोरेटिकल पार्ट है, पता होना चाहिए। ओके, 14 नंबर, विच आयन हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ थियोरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। जिसका n कम होगा उसकी म्यू भी कम होगी। तो n फाइंड करके काम खत्म करते हैं। Cr+3 Cr24 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है Ar4s1 3d5। अभी Cr+3 है तो एक इधर से जाएगा, दो इधर से जाएगा। इट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बनेगा 4s0 बनेगा एंड 3d3 बनेगा। इट मीन्स D में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आए 3। अभी CO+3 दिया है तो क्लियर, तो 27 होता है इसका।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखिए तो Ar4s2 3d7 3 है, तो 2 इसमें से 1 इसमें से, तो इसका CO+3 का क्या आएगा 3d6 4s0। अभी 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें n कितने आए 4 आए। अभी वो बात करते हैं Ti+3 तो 22, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बनता है Ar4s2 3d2। अभी कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 3, तो 2 एंड 1, तो इसमें क्या बनेगा Ar3d1, तो इसमें तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। एंड वेनेडियम+3 तो 23, तो इधर क्या बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन Ar4s2 3d3, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो इसमें 2 बने, तो 2 आएगा। इट मीन्स किसका लीस्ट वैल्यू है, तो आप कह सकते हो इधर आराम से कह सकते हो Ti+3 का, तो आंसर आएगा Ti+3 क्योंकि उसकी n की वैल्यू सबसे कम है। बहुत ही आसान है ये। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन फॉर्म एन अलॉय। तो लास्ट सेशन में ही हमने देखा था कौन अलॉय बना सकता है, ठीक है, 15% एंड वो सब, इट मीन्स उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का पैटर्न सेम होना चाहिए, सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो FeNiCr इसका क्या है 26, इसका कितना 24 एंड इधर 28, क्लियर। तो ऑलमोस्ट उनका एटॉमिक रेडियस तो सेम आ गया, 15% से लेस डिफरेंस है, क्लियर। तो इस हिसाब से आएगा ए, CrCuNa नहीं आ सकता, ये याद ही रखना पड़ेगा, थियोरेटिकल है वैसे, बट लॉजिकली ऐसे आप कह सकते हो, इसमें आंसर आएगा ए, ठीक है। ओके, 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। K4NiCN4 एंड K2NiCN4 बोथ है सेम मैग्नेटिक मोमेंटम। तो पहले हम बना देते हैं इधर दोनों के स्ट्रक्चर बना देते हैं। Ni क्या है Ar4s2 3d8, बहुत ध्यान से देख लेना, Ar4s2 3d8, इधर NiCN4 में -4, K4NiCN4 है, तो इधर तो क्या होगा -4 + 4 0, तो इधर 4s2 3d8 ही है, ठीक है। तो देख लीजिए 1 2 3 4, ये तो गलत है भाई, इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, चलो 3D में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ये K2NiCN4 होगा, आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इधर K2 कर दे तो इधर +2 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 4s में से। K2 है बच्चों, इधर भी K2 है, नहीं इधर भी K4 ही होगा क्योंकि इधर भी K2 दिया गया है, तो K4 ही है, ठीक है। तो इधर Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ है ही नहीं, 0 है इधर, तो इधर 8 है, इधर 4s है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन 4p एंड फिर उसके बाद 4d, ऐसे अरेंज होंगे 4 1 2। अभी Cn तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो पेयरिंग करवाएगा इसका, तो देख लो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी जम करके इधर आ जाएगा, पेयरिंग करवा देगा इसलिए, तो ये क्या बनेगा sp3, तो K4, ये बात की हमने K4NiCN4 में कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ओके, तो sp उसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन बनता है वो देख लेते हैं, फिर है ओके। तो ये है उस सेम मैग्नेटिक मोमेंटम, चेक कर लेते हैं, K2 है तो Ni+2 होगा, तो 4s में से जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो इधर सॉरी एक बार फिर से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, इधर फिर से देख लेते हैं, बहुत ही ध्यान से देख लेना, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको मत देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका पेयरिंग होगा, तो क्या होगा देख लेना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो D बचा, इधर है ही, समझ में आया। इट मीन्स ये इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर,
इसका क्या शेप होगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। एंड K2NiCN4, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें K2NiCN4, तो Ni का +2 है, Cn ही है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही है, तो सब इधर, तो इसका क्या बनेगा DsP2, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों की सेम मैग्नेटिक मोमेंटम हाँ है, क्योंकि इसमें भी μ0 आया, इसमें भी क्या आया μ0, क्योंकि S में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो सही है। K2NiCN4 आप देखने जाए इधर, सॉरी बच्चों बहुत ही कन्फ्यूजन हो गया, बहुत ही कन्फ्यूजन है इसमें, प्लीज़ बिग पार्डन टू यू। तो अभी मैं आपको फिर से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देख लेना। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, वेरी वेरी सॉरी। ओके, फिर से समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इधर Ni है, Ni है 28, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। Ar4s2 3d8 ऐसा ही है, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आता है 4p एंड उसके बाद आता है 4d, ये इतना आपको पता है। अभी बात करते हैं K4NiCN4 की, जिसमें ये 4s2 ही रहेगा, ये पैर हो जाएगा, तो इसके पैर हो जाने से, इसके पैर हो जाने से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये भी इधर आ जाएगा। ओके क्लियर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, 1 2 3 4, तो sp3 मिलेगा एंड इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। यस, इसका म्यू मिलेगा 0। अभी बात करते हैं K2NiCN4 की, बहुत ध्यान से देख लेना। K2NiCN4 उसमें क्या है, 3d8 ही है, 4s खाली है, तो 3d में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, तो एक इधर होगा, 2 3 4 DsP2 बनेगा एंड DsP2 जब भी बनता है तब क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। यस, इसका भी म्यू तो क्या आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, दोनों का सेम मैग्नेटिक मोमेंट है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। K2NiCN4 इज डायामैग्नेटिक वाइल K2NiCl4 Cl4 इज पैरामैग्नेटिक। हाँ, CN4 में इधर डायामैग्नेटिक, Cl में ऐसे नहीं होगा, इधर पीछे जाना पड़ेगा, तो ये पेयरिंग नहीं होगा Cl के अंदर, आप कह सकते हो, क्योंकि Cl वीक लिगेंड है, तो ये भी पॉइंट सही है, ये भी पॉइंट सही है। थर्ड देखो, K4NiCN4 इज अ स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल, नहीं, NiCN4 क्या है, टेट्राहेड्रल है एंड वो हमारा स्क्वायर प्लेनर है। यस, तो फिर ये गलत पॉइंट है, तो ये हमारा आंसर है, तो ये गलत है, इसलिए हमारा ये आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। इज़ इट क्लियर बच्चों? सॉरी फॉर द लिटिल बिट कन्फ्यूजन। इज़ इट क्लियर? ओके, चलिए 17 देखते हैं। द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज़ द लीस्ट कंडक्टिविटी अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, खास याद रखना, कंडक्टिविटी आयंस के ऊपर डिपेंड करती है। आयंस ज़्यादा होंगे, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये सबका स्ट्रक्चर बना दो एक बार। तो अभी इधर क्या पूछा है कि पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम, तो इधर क्रोमियम है, पेंटा एक्वा तो H2O5 क्लोराइडो Cl एंड बार 3 क्लोराइड। अभी इधर Cl है, इसका 0 -1, तो इधर बार क्या आएगा, Cl2। ये इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, मैंने सिखाया हुआ है कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ध्यान से देख लेना। अभी इधर क्या आएगा, क्रोमियम ही है, टेट्रा एक्वा तो 4H2O4, डाइक्लोराइडो तो Cl2, इधर 3 है तो इधर 2 आ गए, तो एक ही आएगा इधर। हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, हेक्सा एक्वा H2O6 एंड अभी बार Cl3 रखेंगे तभी Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा। एंड ट्राई एक्वा
क्रोमियम ही है, ट्राई एक्वा तो H2O3 एंड ट्राई क्लोराइडो। ओके, अभी इधर बाहर को उसके पीछे कोई नेगेटिव आयन नहीं लिखा, तो इधर भी आ ही जाएगा Cl सारे -3 तो ये है। इट मीन्स आप देख सकते हैं इसका आयनाइजेशन करोगे तो ये 2 और 1 तो टोटल 3 आयन मिल रहे हैं, इसमें 2 मिल रहा है, एक इसके बाहर और एक इसमें 3 Cl और एक ब्रैकेट तो 4 मिल रहा है, इसमें कोई भी नहीं मिल रहा है। तो क्या फाइंड करना है, लीस्ट कंडक्टिविटी। तो सबसे कम आयंस किस में है, डी में है, तो हमारा लीस्ट कंडक्टिविटी भी डी में होगा। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच कॉम्प्लेक्स पजेस फेशियल आइसोमर्स। तो आपको पता है Ma3B3 टाइप ही क्या देती है, फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमरिज्म देखते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा है, बी, चेक कर लीजिए, Na3 थ्राइस NO2 थ्राइस, तो हमारा आंसर आएगा ये। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस ऑल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। क्रॉस ऑल्डोल होता है इथेनॉल प्रोपेनॉल का, तो अभी ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, देखते। तो पहले इसमें क्या होता है, इथेनॉल ही इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, तो देख लेते हैं क्या होता है। इधर अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इधर अटैच हो जाएगा, क्या मिलेगा, CH3CHOH, इधर क्या होगा CH2CHO, इधर से OH, इधर से H2 हो गया, तो क्या मिलेगा आपको CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये मिला एक। फिर किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल ही प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, बहुत ध्यान से देख लेना। तो ये हो गया अल्फ़ा कार्बन, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो क्या मिलेगा, देखो CH3CH2CHOH तो है ही, ये C इधर अटैच होगा, उसके ऊपर वो CH3 चला जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OH तो है ही, इधर CH एक अटैच हो गया तो एक H रहेगा ना, तो इधर से OH, इधर से H2O निकला, तो क्या मिलेगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CCH3CHO, ये एक प्रोडक्ट मिला। अभी क्रॉस ऑल्डोल देखते हैं, क्लियर। तो CH3 क्रॉस ऑल्डोल में पता है ना आपको 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, 2 सेल्फ वाले हैं, एक क्रॉस ऑल्डोल वाला। तो CH3CH2CHO, पहले इथेनॉल फिर प्रोपेनॉल, तो ये है अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो आप मुझे बता सकते हो क्या मिलेगा, CH3CHOH, इधर C, इधर CH3, इधर H और इधर CHO। तो अभी इधर OH एंड H2O निकल गया, तो क्या मिलेगा इधर CH3CH डबल बॉन्ड CCH3 एंड CHO, तो ये मिला हमारा एक क्रॉस ऑल्डोल का प्रोडक्ट। अभी इसको आगे ले लेते हैं, CH3CH2CHO प्लस CH3CHO, तो उसे क्या करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देख लीजिए बच्चों। ये हो गया अल्फ़ा, तो इधर क्या करेंगे, CH3CH2CH, इधर OH, CH2C डबल बॉन्ड OH, इधर से OH जाएगा, इधर से H जाएगा, H2O गया, तो क्या मिला CH3CH2CH डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक है, सबके IUPAC नेम। अभी क्या फाइंड करना है, इज़ नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, तो देखते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ऐसा कुछ मिला। चलो इसमें तो कोई मिथाइल नहीं है, थर्ड पे मिथाइल, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यही नहीं मिलता है, इसमें आंसर तो यही है। फिर दूसरे मिलते हैं, देख लेते हैं, 2 मिथाइल पेंटूइनॉल, 1 2 3 4 5, तो 2 मिथाइल पेंटूइनॉल, यस ये रहा। ब्यूटेनॉल, ये रहा। पेंटूइनॉल, ये रहा। इट मीन्स ये सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, ये नहीं मिलता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा ये। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके, नाउ विच इज द मेन फंक्शनल ग्रुप ऑफ एक्रोलीन। एक्रोलीन का मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, बताइए। पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्रोलीन क्या है। तो एक्रोलीन को ऐसे लिखा जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, तो इधर
आप देख सकते हो मेन फंक्शनल ग्रुप एक तो डबल बॉन्ड है CN है, CN ज़्यादा रिएक्टिव, तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये आएगा, तो नाइट्राइल आएगा, नाइट्राइल सिंपल एक्रोलीन। इज इट क्लियर? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स आइसोथैलिक एसिड। तो पहले तो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए आइसोथैलिक एसिड होता क्या है। तो आइसोथैलिक एसिड जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है उसे आइसोथैलिक एसिड कहते हैं मेटा पोजीशन पे। क्लियर? उसे क्या कहते हैं? आइसोथैलिक एसिड। तो ये पैराजाइलिन का स्ट्रक्चर क्या होगा आपको पता है? CH3 का ऑक्सीडेशन करोगे आप तो आपको मिलने वाला तो COOH ही है। ऑर्थोजाइलिन पे कहाँ पे होगा? तो एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, तो COOH इधर ऑर्थो पे मिलेगा, ये पैरा पे मिलेगा। आंसर क्या आएगा? मेटाजाइलिन। सिंपल, क्योंकि मेटा पोजीशन होगा तो आप कह सकते हो CH3 CH3। अभी इसका ऑक्सीडेशन करो तो आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, बहुत आसान है, समझ में आ गया। बट पता होना चाहिए आइसोथैलिक एसिड किसे कहते हैं। क्लियर? ओके, बहुत ध्यान से। Now next 22, which is oxidized product obtained when benzene diazenyl chloride reacts with phosphonic acid। ये भी रिएक्शन है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट आपको पता है, हमने ये रिएक्शन टेक्सचुअली है, देखा हुआ है। N2+Cl- एंड उसका रिएक्शन होता है H3PO4 के साथ। क्लियर? फॉस्फोनिक, सॉरी फॉस्फोनिक तो H3PO2 होता है। H3PO2 फॉस्फोनिक एसिड है। क्लियर? तो हमें पता था इसमें क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है। ये सब हमें पता है, ये रिएक्शन हमें पता है। तो आंसर क्या आएगा? बेंजीन आएगा H3PO2 के साथ। पता है इस रिएक्शन। क्लियर? इसलिए अभी 23 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। तो अभी NH2 दिया है, जितना NH2 इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा उतना उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। तो इधर ऑर्थो पे Cl है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ले लेगा इधर। OCH3 की इफेक्ट क्या होती है? +M होता है OCH3। OCH3 क्या होता है? +M। तो ये डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी, तो इससे N आराम से निकल जाएगा। तो ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है। अभी ये NH2 है सिंपल अकेला, तो ये भी तो रिमूव कर सकता है, बट इधर NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। क्लियर? इट में आंसर आएगा B, हमारा B। क्लियर? ड्यू टू +M इफेक्ट। अगर आपको ये सब नहीं आता, मेरा वीडियो देखो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, आपको मैंने JEE वाले पेपर में भी बताया था, उसमें से क्वेश्चन आए थे ऐसे। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स भी मैंने बनाया हुआ है, देखिए ऐसे चैप्टर्स, ऐसे लेक्चर्स सॉरी, तो आपको क्या पता चल जाएगा। बेसिक है ये। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ऑरेंज एजोडाई एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। क्या आएगा इधर? तो पहले तो ऑरेंज एजोडाई का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। तो डायजोनियम सॉल्ट तो था, तो N डबल बॉन्ड N तो था ही। क्लियर? एजो कपलिंग रिएक्शन में हमने देखा था इधर क्या हो गया था? OH, उसे एजोडाई कहते हैं। तो चलिए ये सब जगह पे हाइड्रोजन तो होगा ही, फाइंड करते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो वो चलो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। क्या बना? 24। फिर ये नहीं आएगा 25। क्लियर? कैलकुलेशन में गलती हो गई, एक इधर मिस कर दिया हमने। ओके, डन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 26। तो 26 सिग्मा मिले हमें। ठीक है, एंड पाई बॉन्ड आप कह सकते हो 3, और 3
6 और एक बीच में 7, तो 7 पाई बॉन्ड। इन शॉर्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो 26 सिग्मा एंड 7 पाई बॉन्ड, तो ये आया हमारा आंसर। इज इट क्लियर? ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट वन। विच वन इज़ अ प्यूरिन बेस? तो आप सिंपल बायोलॉजी वाले मुझे आंसर दे सकते हो, ग्वानिन केमिस्ट्री वाले को भी देना ही पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी है, आपको पता है ये कैसा बेस होता है, प्यूरिन। लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था पिरीमिडीन, पता है ना? क्लियर? उसमें साइटोसिन एंड थायमिन था पिरीमिडीन में। क्लियर? तो इधर क्या आएगा? ग्वानिन आएगा। ग्वानिन प्यूरिन बेस है। ग्वानिन का स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था बेसिटी वाले में। ठीक है, ओके। अभी 26 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज pH ग्रेटर देन 7? इट मीन्स बेसिक एमिनो एसिड। तो बेसिक एमिनो एसिड हमारा कौन सा है इसमें से, लिस्ट में से? चलो पहचानिए बेसिक एमिनो एसिड। ग्लूटामेक, लाइसिन। यस, लाइसिन हमारा क्या है? बेसिक एमिनो एसिड है। ग्लाइसिन नहीं है, एलेनाइन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? लाइसिन इज अवर बेसिक एमिनो एसिड। Clear? Now let's see the 27 one. Which is the correct structural formula for pteryline? If you remembered the last session, उसमें pteryline किस में से बनता है वो क्वेश्चन था, एंड मैंने तब आपको pteryline का प्रिपरेशन बताया हुआ है, एंड आप सभी को भी पता है pteryline का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो pteryline में क्या होगा आपका फॉर्मूला? ये होगा C। इधर भी देखो आप CH2CH2 आ रहा है, इधर भी CH2CH2 हो रहा है, बट इधर आप देख सकते हो पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग, इधर भी आप देख सकते हो ये मेटा पोजीशन आ गया, ये दोनों पैरा पोजीशन। तो ये हमारा सही स्ट्रक्चर है। क्लियर? ओके, इसलिए आंसर आएगा C। ओके, लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। विच आर द मोनोमर्स ऑफ ब्यूना एन? ब्यूना एन के मोनोमर कौन है? तो भाई ब्यूना एन किसका पॉलीमर होता है? तो आपको पता है ब्यूटा 1,3 डाइन। तो ब्यूटा 1,3 डाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। अभी हमने पढ़ा एक्राइलोनाइट्राइल एंड ब्यूटा 1,3 डाइन कंबाइन होके क्या बनाते हैं? ब्यूना एन बनाते हैं। क्लियर? तो क्या आंसर आएगा अपना आंसर आएगा, तो अभी एक्राइलोनाइट्राइल देखा तो उसका स्ट्रक्चर हमने क्या देखा? तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो 1 2 3, तो आप कह सकते हो प्रोप 2 in 1 नाइट्राइल। 1 2 3 प्रोप 2 in 1 नाइट्राइल। यस, तो ये आएगा। क्लियर? 1,3 डाइन है, तो इधर 1,2 डाइन लिखा है, और ये भी नहीं बैठता, ये भी नहीं। तो समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? तो ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। Is it clear to everyone? Okay, please comment. Next one. Match the following. आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ओके, आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन होगा? एलिटेम होगा, तो P के साथ N जाएगा, तीनों में जाता है। फूड प्रिजर्वेटिव, तो फूड प्रिजर्वेटिव हमारा कौन होगा? सॉर्बिक एसिड होगा, Q के साथ हो जाएगा, ये भी ये दोनों में जाता है, तो ये दोनों में से एक आंसर होगा। एंटीऑक्सीडेंट कौन होगा? एस्कॉर्बिक एसिड, तो M, तो ये हमारा आंसर आ गया। एंड फूड कलर आपको पता है कैरोमल। ओके, तो हमारा आंसर आया C। थियोरेटिकल है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग गिव्स रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस? थियोरेटिकल क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा? ल्यूमिनाल। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो ल्यूमिनाल इज अवर आंसर। नेक्स्ट, इफ द एज ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर, तो ए दिया गया आपको 400 पिकोमीटर। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेडियस? आपको आर फाइंड करना है। BCC है, तो BCC के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? A इज इक्वल टू 4R/√3, तो √3A/4, तो √3A/4 आप देखोगे, आप कैलकुलेशन करिए 400। क्लियर?
तो ये 173 पिकोमीटर आएगा, डायरेक्टली कर सकता है। ठीक है, तो आंसर मिला आपको 173 पिकोमीटर। ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट वन 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक, ऑल्सो थियोरेटिकल क्वेश्चन। सिंपली बता सकता हूँ CrO2 क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा। क्लियर, ओके, CrO2 हमारा क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक, ये आप सभी को पता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन 33। व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हैविंग pH इज इक्वल टू 1। जो स्टूडेंट ने मेरे साथ नॉर्मलिटी मोलारिटी पढ़ा है एंड सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, तो मैंने आपको हमेशा बताया होगा, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ओके, चलिए बता देते हैं। इधर H2SO4 दिया है, उसका pH बच्चों दिया है 1 दिया है, उसका pH क्या दिया है, 1 दिया है। अभी आपको पता है pH इज इक्वल टू क्या होता है, -log10H+। तो आप H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लो, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस एंटीलॉग ऑफ pH। क्लियर, ओके, अंडरस्टूड। तो pH क्या आएगा आपका 10⁻⁻1। डन, क्लियर। तो इट मीन्स H2SO4 है, गिव्स क्या होता है 2H प्लस प्लस SO4 2-। अभी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आया 0.1, लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 को 0.1, तो ये कितना आएगा, कम आएगा उसके 0.05। 0.05 इंटू 2 ही 0.1 होगा। समझ में आया ना क्यों मैंने 0.05 लिखा, ये उसकी मोलारिटी आई बच्चों, मोलारिटी। तो H2SO4 की मोलारिटी हमें मिल गई, वो आया 0.05 मोलर। अभी नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एसिडिसिटी, बेसिटी और एन फैक्टर। तो मोलारिटी 0.05, H2SO4 एन फैक्टर 2, सो इट विल बी 0.1. So answer will be C. 33, the answer will be C. This is important one, मैंने बताया था आपको बहुत ही बार। ओके, चलिए समझ में आ गया बच्चों, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following mixture is non-ideal solution? Non-ideal solution, पहला ही आंसर क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो आपको पता है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन नहीं है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आइडियल सॉल्यूशन, बेंजीन टॉल्यूइन आइडियल, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन आइडियल है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, नॉन आइडियल है, ठीक है। ओके, चलिए जाते हैं नेक्स्ट पे। विच सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ 6% वेट बाय वेट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो यूरिया दिया है आपको, उसका 6% वेट बाय वॉल्यूम दिया है, तो आप सिंपल कह सकते हैं आइसोस्मोटिक फाइंड करना है। आइसोटोनिक को आइसोस्मोटिक भी बोलते हैं, आपको पता है। इसके लिए पाई फाइंड कर देते हैं बच्चों, क्या आता है I इंटू CRT, क्लियर। और ऐसे लिखे तो I इंटू WRT अपॉन MB, ये भी फॉर्मूला था इसका। चलिए तो वो फाइंड करता है, I तो 1 ही आएगा यूरिया के लिए, W कितना है 6 आएगा, R और T को अभी ऐसे ही रख रहा है। ओके, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 60 एंड वॉल्यूम कितना होगा 100 ml, पर इधर हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। ओके, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 लीटर लिख देता हूँ। तो इधर मुझे इसका पाई कितना मिला, तो आप कह सकते हो सिंपल 6/10, तो आप 10 इंटू 0.1, तो ये भी 1 आएगा। तो पाई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमारा, RT मिल रहा है, RT जितना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी बीच में फाइंड करके देख लो इन सब के लिए क्या होगा, सबका कॉन्सेंट्रेशन दिया है। जनरली क्या होता है, पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT। अगर I इंटू C मिला के 1 आता है तो पाई हमारा RT जितना हो जाएगा, तो उसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। अभी 0.25, इसके आयंस 2, तो इधर क्या आएगा 0.50, तो ये 0.50 RT हुआ इसके लिए। इसके लिए 0.5 इंटू 2 1 RT हुआ, इसके लिए 0.1 इंटू 2 तो 0.2 RT हुआ, इसके लिए 1 इंटू 2 तो 2 RT हुआ। तो 1 RT किसके लिए आया इधर, 1 RT, तो इसके लिए आया B, तो हमारा आंसर आएगा क्या, B आएगा।
ठीक है, समझ में आ गया कैसे करते हैं इसके क्वेश्चन? आपको पता होना चाहिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कब सेम होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है तब। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 36। आपको इन विच मेटल कंटेनर द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 कैन बी स्टोर्ड? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, NiFe के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं E0 Cu + 2 Cu। पहले सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताओ मुझे। चलिए, तो ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये भी ऑक्सीडेशन है 3, तो उसको पहले साइन चेंज कर देते हैं रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। -1.66 -0.44 -0.25 + 0.80। क्लियर? तो अभी पहले सबसे ऊपर Ag आएगा, फिर Cu आएगा, कह सकते हो ना आप आराम से। फिर क्या आएगा? Ni आएगा, फिर Fe एंड फिर आएगा Al। तो ऐसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हम। अभी कॉपर को किस में क्या पूछा है? रख सकते हैं, सॉरी, विच मेटल कंटेनर, इन विच मेटल कंटेनर, कौन सी मेटल के अंदर CuSO4 को रख सकते हैं? कौन सी मेटल के अंदर CuSO4 को रख सकते हैं? तो वही मेटल के अंदर रख सकते हैं जो CuSO4 को क्या करे? डिस्प्लेस ना कर दे। तो आपको पता है टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ऑप्शन दिया है NiFeAl, Ni की रिएक्टिविटी क्या है? ज़्यादा है Cu से, तो Ni Cu को डिस्प्लेस कर देगा। Fe वाले कंटेनर में रखेंगे तो Fe की भी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो Fe Cu को डिस्प्लेस कर देगा, Al भी Cu को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए आंसर आएगा Ag, क्योंकि Ag की रिएक्टिविटी क्या है? कम है। तो ये आया। हमें पता है EMF सीरीज़ में जैसे अरेंज किया था रिडक्शन पोटेंशियल के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया, एंड जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं उधर रिएक्टिविटी क्या होता है? इंक्रीज होता है ना। आपको पता है हायर रिएक्टिव को लोअर में रखेंगे तो डिस्प्लेस कर देगा। सिंपल है, तो आंसर आएगा हमारा A, दैट इज Ag। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। फॉर हाउ मच टाइम 10 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट should be passed through a dilute aqueous NiSO4 solution during electrolysis using inert electrode in order to get 5.28 ग्राम निकल। तो टाइम फाइंड करना है। I दिया गया है हमें 10 एम्पियर, वेट दिया गया है 5.85, हमें T फाइंड करना है बच्चों। निकल दिया गया है, तो निकल का क्या होता है? तो आपको पता है Ni + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ni, इट मीन्स N क्या आएगा? 2 आएगा, N फैक्टर इसका। तो आपको पता है W = क्या फॉर्मूला होता है? जीट। क्लियर? Z = क्या होता है? इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 इंटू I इंटू T W। तो W इक्विवेलेंट मास क्या होता है? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी और N फैक्टर। तो N फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू T। तो चलिए T को सब्जेक्ट बनाते हैं इधर इसमें से, तो क्या होगा? W इंटू N फैक्टर इंटू 96500 अपॉन एटॉमिक मास इंटू I। सब कुछ है आपके पास, लगा लो। इधर 2 है, इधर 96500 है, एटॉमिक मास दिया गया है 58.5 एंड I दिया गया है 10। तो ये आप आराम से कैंसिल कर सकते हो, एंड इसको भी 5 कर दो। उधर आप जो भी आप आंसर लाओगे वो हमारा सेकेंड के अंदर आंसर आएगा 1930 सेकेंड। आंसर हमें मिलेगा 1930 सेकेंड अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ऑप्शन होगा ये C। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट? ओके, बहुत ही आसान है। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। तो बच्चों ये आया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मैंने बहुत बार सॉल्व कराया हुआ है, ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हाफ सेल एट 1 बार एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर? pH 3 दिया गया है। अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके,
तो इधर आप ऐसे लिख सकते हो हाफ H2 गिव्स H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसका N क्या बना 1, N मीन्स चेंज इन इलेक्ट्रॉन क्या बना 1। अभी EH2H प्लस उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, इज इक्वल टू E0 H2H प्लस माइनस 0.059 अपॉन N इंटू लॉग Q। लॉग Q क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये फाइंड करना है। तो ये तो भाई जीरो ही आता है, 0.01 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज 0। तो ये इधर क्या लिखेंगे 0.059, एन क्या आया 1, तो 1 लिखेंगे। अभी लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये एक्वियस सॉल्यूशन में होगा, ये गैसियस सॉल्यूशन में होगा। तो इधर क्या प्रोडक्ट क्या बताता है H प्लस एंड अपॉन H2 गैसियस। हमें पता है एक्वियस एंड गैसियस ही लिखते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड नहीं लिखते, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो अभी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -0.059 इंटू लॉग H प्लस, अभी H2 तो प्रेशर दिया गया है कितना 1 बार, तो ये 1 आ जाएगा, तो मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो लॉग H प्लस आया, लॉग H प्लस, ओके अंडरस्टूड, लॉग H प्लस इतना है। अब ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ 0.059 इंटू माइनस लॉग H प्लस। आपको पता है माइनस लॉग H प्लस को हम क्या कहते हैं, PH कहते हैं, तो इज इक्वल टू क्या होगा 0.059 इंटू PH एंड 0.059 इंटू 3, तो देखोगे तो आंसर मिलेगा आपको 0.177 वोल्ट, आंसर रहेगा C। समझ में आया बच्चों, क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, बहुत ही आसान एंड इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट, हर लोग इसमें गलती कर देते हैं, ज़ीरो लिख के आ जाते हैं, बट स्टैंडर्ड नहीं पूछा। इधर लिखा है स्टैंडर्ड, नहीं लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है, ओके। आप फिर मुझे क्वेश्चन करोगे सर इधर 25 डिग्री सेल्सियस तो लिखा है, इधर 1 बार तो लिखा है। मैंने जब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर सिखाया था, अभी भी यूट्यूब पे है मेरा पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें ये टॉपिक में मैंने बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने क्या 1 मोलर दिया है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं दिया है। भले ये दोनों फैक्टर स्टैंडर्ड कंडीशन वाले हो, बट कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर होना चाहिए, तभी उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। इधर नहीं दिया, इट मीन्स ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसीलिए हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर, ओके, समझना इसको बहुत ध्यान से। चलिए देखते हैं 39, विच ओर डज नॉट कंटेन कार्बोनेट। कार्बोनेट कैलेमाइन भी है, CaCO, सिडेराइट, मेलेकाइट, जिंकाइट ZnO। क्लियर, ZnO को क्या कहते हैं, जिंकाइट कहते हैं, बाकी की सारी कार्बोनेट वाली है, तो आंसर आएगा अपना D। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटलर्जी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मेटल। पहले क्या करते हैं, कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, फिर क्या होगा, स्मेल्टिंग होता है, रोस्टिंग होता है, आपको पता है, कॉन्सेंट्रेशन फिर रोस्टिंग होता है, फिर क्या होता है, स्मेल्टिंग, यस, एंड फिर बेसेमराइजेशन। आपको समझ में आ गया, स्मेल्टिंग मीन्स आंसर आ गया C। तो ये थियोरेटिकल पार्ट है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको, क्लियर है, बहुत ही आसान बना दिया मैंने इसको आपके लिए, एंड ये पेपर भी बहुत आसान था, तो आपको भी इसमें जो भी है वो समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है, क्लियर। कुछ डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपको सिखा देता हूँ, कुछ भी डाउट है तो। इज़ देयर एनी डाउट स्टूडेंट? नहीं होगा, एंड आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करिए कि सर कोई डाउट नहीं है, वी हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट प्रॉपरली, एंड पूरा हमने प्रॉपरली सॉल्व कर दिया है। क्लियर, प्लीज़ प्लीज़ लिखिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।